So we are continuing our lecture of what? Elastic collisions in one dimensions. Okay. So हमने इस तरह से कहा था, if we have an object like this and if it has mass m1, it's moving with velocity u1. There is another object with mass m2 moving with velocity u2. Okay, u1 is greater than u2. Then what happens? A collision happens between them, and due to that collision, one of the object moves in this direction with the velocity v1, and other object moves in this direction with the velocity v2. Okay, so in previous class we have calculated the velocity v1. That was equivalent to v1 was equivalent to m1 minus m2 multiplied by u1. Then we have a term plus twice m2 u2, twice m2 u2 divided by, okay, these are small m's, m1 m2, then we have m2 u2 divided by m1 plus m2. Okay, this was the velocity of the first body after the collision. Okay, also हमने एक expression भी लिखा था बीच में, if you remember that expression, that was written as like this: v1 is v2 minus u2, and then we have a term plus u1 minus u1 plus u2. Okay, ये हमारे पास expression थी जो हमने लिखी थी, v1 was equivalent to v2 minus u1 plus u2. Okay, so अब यहाँ पे जो वैल्यू v1 दिया गया है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. So what we will get? We will get m1 minus m2 into u1 plus twice m2 u2 divided by m1 plus m2, that is equivalent to v2 minus u1 plus u2. Okay, so we can have it like this way: m1 minus m2 multiplied by u1 plus twice m2 u2 divided by m1 plus m2. Okay, इस minus u1 को यहाँ पे लेके आए तो it will be plus u1, then इसको यहाँ पे लेके आए तो it will be minus u2, which is equivalent to v2. ठीक है, I can write it like this way: m1 u1 minus m2 u2, then plus twice m2 u2 plus, देख लीजिए, this will be m1 multiplied by u1, तो that is m1 u1 है ना. फिर ये m1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो it will be minus m2 u2. ओके, फिर m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो it will be m1 u1. फिर ये m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा minus m2 u2 whole divided by what? m1 plus m2. Is that clear? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस. तो अब देख लीजिए कौन कौन सी टर्म यहाँ पे है जो वो कैंसिल हो जाएगी, या व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट्स एक्स्ट्रा. तो देखिए, दिस इज m1 u1, ओके, दिस इज m1 u1, सो इट विल बी ट्वाइस m1 u1. ओके, ये और ये तो हो गया. ठीक है, राइट. अब इस तरह से दिस विल बी m2 u2, दिस इज m2 u2, and here we have m2 u2. okay, m2 u2 minus and minus m2 u2 will be twice m2 u2, जो फिर इस प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो बचेगी ये टर्म यहाँ पर, ओनली दिस वन. ओके, माइनस m2 u2. आई गेस दिस m1 u1. ओके, दिस m1 u1 is there. Okay, there is some other m1 u1 also here. We have, okay, it's m1 u1, so it will be m1 u1, m1 u1, m1 u1. I think it's thrice, right? Is that correct? This will be m1 u1, right? m2 u2, right? फिर m2 u1, m2 u1. ठीक है, तो these two m2 u1, not m1 u1, sorry, m2 u1. Okay, it is twice here. ठीक है, तो अब देख लीजिए, तो m1 u1 इट विल बी ट्वाइस,
फिर m2u2 माइनस m2u2, दिस माइनस m2u2 इट विल बिकम माइनस ट्वाइस m2u2, फिर जो प्लस m2u2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचेगा यहाँ पे माइनस m2u2 हियर, ठीक है, एक माइनस m2u2, ठीक, और बस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू v2, ठीक है कि नहीं, है ना। कोई और टर्म बचेगी यहाँ पे? आई थिंक देयर शुड बी सम अदर टर्म आल्सो, जरा बताओ। ये टर्म m1u1 and this one m1u1, so it's fine, okay। m2u2, this is minus m2u2, this is minus m2u2, तो it will be 2 times, जो फिर इस 2 टाइम के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या? बचा ये माइनस होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, आई थिंक इट्स फाइन, ओके। देखो, this is the mistake. I have written m1u1 here, then it is m2u1, but it is m2u1 here, okay. Let me write it m2u1. Then we have twice m2u2, that is here, and then we have m1u1, okay, m1u2, okay, m1u1 here, okay, then m1u2, here again I have mistake, m1u1, that is m1u1, फिर m1 minus m2, so just minus m1u2, and then we have m2u1, then we have last bit minus m2u2, that's correct, okay। So now the things are in proper order। तो अब बताइए अब क्या बचेगा फाइनली, what will be the final then? हाँ, तो it will be okay, this m1u1, and is there some other m1u1? No, it will be twice, है ना, m1u1, okay, ये और ये हो गया, ठीक है, m1u1 and this m1u1 डन, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, this is m2u1, okay, is there some m2u1 there? No, m2u1, so minus it is m2u1, okay। Then we have twice m2u2, okay, m2u2, then this m2u2, है ना, so it will be minus, so it will be plus m2u2, ठीक है। फिर ये तो हो गया, अब बचा क्या, माइनस m1u2, है ना, तो ये बचा माइनस m1u2, और कुछ बचा m2u1। असल में ये जो m2u1 है ना, और ये जो m2u1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो m2u1 टर्म यहाँ पे नहीं आएगी, है ना, ठीक। इट विल बी देन डिवाइडेड बाय, ओके, m1 प्लस m2, that is equal to v2, okay। I can write it twice m1u1 प्लस यहाँ से मैं m2 को कॉमन ले, सॉरी u2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा क्या, m2 माइनस m1 into u2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, this is nothing but it is v2, okay। This is the velocity of second object after the collision, okay। This was the velocity of first object after collision, and this one is the velocity of second object after collision, okay। अब ध्यान रखिए, देखिए हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। These are two velocities, okay, we will discuss some special cases here, special cases। जैसे कि हम पहला केस लेंगे, अगर इस तरह सा केस हुआ m1 is equivalent to m2 is equal to m, okay, it means that both objects have same mass, both bodies have same mass, ठीक है। अब कंसिडर कीजिए दो बॉडीज को, दो ऑब्जेक्ट्स को जिनके बीच में कोल्यूजन हो रहा है, और दोनों का जो मास है दैट इज सेम, ओके, दोनों का मास क्या है, सेम है। in that case what will be the velocity after collision, v1। देखो अगर m1 और m2 सेम है तो दिस विल बी m एंड माइनस m, है ना, क्योंकि दोनों का मास मैंने m लिया है, ठीक है। देन इट विल बी u1 प्लस ट्वाइस m, देन इट इज u2 होल डिवाइडेड बाय m1, दैट इज m, और दूसरे का भी क्या है m, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस m क्या होगा, 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय u1 दैट इज 0, तो ये बचेगा ट्वाइस m u2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस m, ट्वाइस m गोज दैट इज u2, ठीक है। तो आप देख लीजिए v1 इज इक्वल टू u2, v1 इज इक्वल टू u2, ओके। सिमिलरली आप बताइए v2 किसके बराबर आएगा, तो ये m माइनस m, ओके, देन u2 प्लस
2mu1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो ये तो पहली टर्म तो 0, सो ये आएगा ट्वाइस mu1, नीचे आएगा ट्वाइस m, तो दैट इज u1। ओके है ना। तो आप इस सिचुएशन को कैसे डिपिक्ट कर सकते हो, इस तरह से कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है ना, ठीक, ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी u1, राइट। यहां पर एक और ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका मास m2 है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u2। कहते हैं कि जब इन दोनों के बीच में कोल्यूजन होगा, बोथ का मास, दोनों का मास सेम है, जब इन दोनों के बीच में कोल्यूजन होगा तो जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी v1 बराबर होगी u2 की वेलोसिटी की। ठीक है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी ना आफ्टर द कोल्यूजन, दैट विल बी इक्वल टू दिस वेलोसिटी u2, है ना। और दूसरा वाला जो है ना, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी होगी ना दैट विल बी इक्वल टू u1। ओके, मतलब इस तरह से कि ये ऑब्जेक्ट जो अभी मूव कर रहा था विद द वेलोसिटी u1 और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था विद द वेलोसिटी u2, आफ्टर द कोल्यूजन इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो u2 होगी और इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो u1 होगी। तो व्हाट आई विल से, सिंपली इफ द ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मास then after collision they only exchange their velocities। okay, after collision they only exchange their velocities। ठीक, so if objects have same mass, if objects have same mass then they only exchange their energies after collision, exchange their velocities आफ्टर कोल्यूजन। ठीक है कि नहीं, है ना। मतलब कोल्यूजन होने के बाद जो पहले वाले की वेलोसिटी थी अब वो दूसरे के वाले के पास आ जाएगी और दूसरे वाले के पास जो थी वो अब पहले वाले के पास आ जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट्स ओनली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। ठीक, अब दूसरा केस आप कंसिडर कर सकते हैं। लेट मी टेक सेकंड केस इस तरह से, इफ u2 इज 0 मेरे जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इट इज एट रेस्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है कि नहीं, है ना। कोल्यूजन बिल्कुल इस तरह से हो रहा है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये रेस्ट पर है और यहां से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है। ठीक है कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ना इसका मास m1 है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसका मास m2 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब कोल्यूजन होगा तो फाइनली कोल्यूजन में वेलोसिटी किसकी क्या होगी। ठीक है, तो ओके लेट मी सी, v1 किसके बराबर आएगा देन। अब देखो m1 माइनस m2, दिस विल बी m1 माइनस m2 एंड देन u1, ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेकंड टर्म नहीं आएगी यहाँ पे क्योंकि सेकंड टर्म क्या है u2 सेकंड टर्म में u2 है और u2 क्या है 0 है। ठीक है कि नहीं, है ना। अच्छा अब देखिए, अब दूसरी वाली वेलोसिटी v2 किसके बराबर आएगी देन। ओके, ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, बाकी बचा क्या, ट्वाइस m1 बाय m1 प्लस m2 एंड देन इट इज u1। ओके, ठीक है, यानी होगा क्या कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का, दोनों में से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो आफ्टर कोल्यूजन दिस विल बी देयर वेलोसिटीज। ओके, दिस विल बी देयर वेलोसिटीज, राइट। ओके, ठीक है। अब तीसरा केस कंसीडर कर लेते हैं, वो ये है कि इफ u2 इज 0, मतलब क्या, सेकंड ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेस्ट पर। ओके, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m और दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास क्या है, बराबर है। ठीक है, सिचुएशन बिल्कुल इस तरह से है कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी u1, लेकिन दूसरा वाला रेस्ट पर है। तो मुझे बताइए कोल्यूजन के बाद क्या होगा। अगर मैं कोल्यूजन के बाद इसकी वेलोसिटी देखूं v1, दैट विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2, दैट्स m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m दैट इज u1, तो वो क्या हो जाएगी 0। ठीक है कि नहीं, क्योंकि m1 माइनस m इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा u2 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा ट्वाइस
m डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो दैट इज इनटू u1, 2m to m कैंसिल, तो दैट विल बी u1, है ना ठीक। देखो क्या मतलब ये कि जब कोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो कोल्यूशन के बाद ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, 0, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा रेस्ट पर, क्या आ जाएगा, रेस्ट पर। और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव करेगा, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी u1 होगी, ठीक है ना। मतलब जब कोल्यूशन हो जाएगा तो कोल्यूशन के बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इससे टकरा जाएगा, तो होगा ये कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा और अपनी वेलोसिटी ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को देगा, ठीक है कि नहीं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, राइट, इज दैट क्लियर, ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कीजिए। ओके, कंसिडर एन अनदर स्पेशल केस, ठीक है, तो इस तरह से व्हेन मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी is very small, that is m2 is less than m1, ठीक है। देखिए इस तरह से कोल्यूशन हो रहा है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है ना, यहां पे ये m2 है इस तरह से, दिस इज m2, और यहां पे m1 है। अब देखो यहां पे m1 जो है ना ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका मास बहुत ज्यादा है, और m1 जो है, m2 जो है इसका मास बहुत कम है, ये छोटा सा पार्टिकल, ठीक है, इसका मास ज्यादा है, से फॉर एग्जांपल u1 एंड ये यहाँ पे है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है u2 से फॉर एग्जांपल, ओके। सो क्या कहा गया यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट एक, इस वाले ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ओके, यू जस्ट कंसिडर द सिचुएशन लाइक दिस कि एक ट्रक है विच इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, उसका मास m1 है और रोड पर रखा गया है एक छोटा सा ड्रम, ठीक है कि नहीं, खाली ड्रम। अब उस ड्रम का मास क्या है, m2 है, हो गई ना सिचुएशन फिट। m1 बहुत ज्यादा है, ट्रक का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द ड्रम, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जब वो कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ठीक है। देखो जरा मुझे बताओ, इस वाले केस में अगर मैं m1 माइनस m2 देख लूं तो वो क्या आएगा, वो नियरली आएगा m1 के बराबर, है ना, क्योंकि m1 बहुत ज्यादा है, m2 बहुत छोटा है, ठीक है, तो m1 माइनस m2 के बदले में m1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो तो v1 किसके बराबर आएगा, इट विल बी m1 माइनस m2, दैट इज m1, है ना, u1 प्लस ट्वाइस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, दिस विल बी द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो और एक चीज यहां पे, अब चूंकि m2 बहुत छोटा है, ठीक है, m2 काफी छोटा है, सो आई कैन जस्ट नेग्लेक्ट द m2, ओके, तो यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे, यहां पे भी नेग्लेक्ट करेंगे, तो इट विल बी m1 u1 डिवाइडेड बाय m1, तो दैट इज इक्वल टू u1, ठीक है कि नहीं, है ना। तो मतलब देखो क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट इसके साथ कोलाइड करेगा, ठीक है, तो ये जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है ना, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी u1, ये कंटिन्यू मूव करेगा अपनी ही वेलोसिटी के साथ, इसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब ये ट्रक इस ड्रम के साथ कोलाइड करेगी तो ट्रक की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं होगा, ट्रक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, इट विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग, ओके, विद द सेम वेलोसिटी जैसे कि इसके पास पहले थी, इनिशियली थी, ठीक है ना। अब देखो दूसरे वाले के साथ क्या होगा, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस ड्रम के साथ क्या होगा, v2, देखो m2 माइनस m1, अगेन यहां पे देख लो m1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू व्हाट, m2, ठीक है कि नहीं। सो व्हाट कैन आई राइट, सो यहां पे मैं इस तरह से कह सकता हूं, यहां पे m2 नेग्लिजिबल है, ठीक है, यहां पर भी m2 नेग्लिजिबल है, तो यहां पर लेकिन m2 नहीं है टर्म, है ना, ठीक। तो वी कैन व्हाट राइट इट लाइक दिस वे, ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1, है ना, नेग्लेक्टिंग अदर थिंग्स, ठीक। तो m1 और m1 कैंसल, तो इट विल बी ट्वाइस u1, ठीक है कि नहीं। अब ये जो छोटा ऑब्जेक्ट है ना, ये भी मूव करेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ट्रक से डबल, ठीक है कि नहीं, ठीक, समझ आ रही है बात। अब देखो इस तरह से जब एक ट्रक एक छोटे से ड्रम के साथ कोलाइड करेगा तो व्हाट हैपेंस, ट्रक विल कंटिन्यू मूव विद द सेम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ड्रम है वो भी मूव करेगा, और कितना तेज, वो ट्रक से डबल वेलोसिटी पे मूव करेगा,
ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक बड़े से ऑब्जेक्ट ने एक छोटे से ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन किया, ठीक है, तो वो जो छोटा ऑब्जेक्ट है उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, काफी ज्यादा असर पड़ेगा, है ना, ठीक, इज दैट क्लियर। तो याद रखेंगे कि व्हेन ए हेवी ऑब्जेक्ट collides with a light object, then what happens, the heavy object keeps moving, ठीक है, with the same velocity, but the smaller object moves with the velocity double that of heavier object, okay, is that clear, ठीक। चलिए अब दूसरा केस देख लेते हैं। इस तरह से एक और केस भी हमारे पास है, इट वाज थर्ड एंड फोर्थ नाउ, व्हेन m1 इज वेरी स्मॉल, ठीक है, मतलब इस तरह से कि अब अगर इस तरह से सिचुएशन को मैं कहूं कि यहां पर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट उसके साथ कोलाइड कर रहा है, इस तरह से छोटा ऑब्जेक्ट है वो कोलाइड कर रहा है किसके साथ, एक बड़े वाले ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है उसके साथ ये क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अब मुझे बताओ इस केस में फिर होगा क्या, देखो v1 किसके बराबर है, हम यहां पे ले सकते हैं ना m1 माइनस m2, देन किसके बराबर ले सकते हैं, क्योंकि हाँ इट विल बी m2 नहीं माइनस m2, है ना, ठीक, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस है, ठीक है, पहले टर्म को नेग्लिजिबल मान लेंगे ऑलमोस्ट जीरो, तो इट विल बी माइनस m2, है ना, ठीक, तो m1 तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देख लो इस वाले केस में m1 माइनस m2 दैट इज माइनस m2, है ना, देन u1 डिवाइडेड बाय, ओके, इस वाले केस में हम कह सकते हैं ओके इट्स ट्वाइस, हाँ राइट, हाँ ट्वाइस m2 u2 डिवाइडेड बाय, बताओ मुझे इस वाले केस में m1 m2, हाँ तो m1 क्या हो जाएगा और m2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो वी कैन जस्ट टेक लाइक दिस वे, ओके, इज इट क्लियर। अब दूसरे वाले की वेलोसिटी के साथ क्या हो जाएगा, शाबाश, m2 इज हेवियर मास, है ना, तो m1 प्लस m2 को हमने क्या लिया, किसके बराबर लिया, m2 के बराबर, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए यहाँ पे v2 किसके बराबर आएगा, इट विल बी m2 माइनस m1, तो m2 तो बड़ा है तो m2 बचेगा m2 u2, ओके, देन प्लस m1 तो नेग्लिजिबल ही हो गया वो, ठीक है, m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 काफी कम है तो हम m2 को ले सकते हैं, तो इट विल बी u2, ठीक है, यहाँ पे इट विल बी u2, ठीक है, कि फिर से देखो जरा मुझे बताओ व्हाट हैपेंस देन, v2 क्या आएगा, इट विल बी m2 तो बड़ा है तो m2 माइनस m1 को m2 ही लिख सकते हैं, और दूसरे वाले टर्म में m1 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो इट इज ट्वाइस m1 m2, है ना, ठीक, इज दैट क्लियर, हाँ ठीक है यहां तक। अब अगर मैं इस तरह से एज्यूम करूं कि ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो है ना इट इज एट रेस्ट, ओके, व्हाट आई हैव अज्यूम्ड कि एक लाइट ऑब्जेक्ट हेवियर ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रहा है, लेकिन वो हेवियर ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेस्ट पर है, ठीक है, तो देखो क्या होगा उस केस में, मतलब u2 को मैं 0 मान लूं तो उस केस में क्या होगा, ये आएगा 0, देन इट इज माइनस m2 डिवाइड बाय m2 u1, तो इट विल बी माइनस u1, ठीक है, और दूसरे में क्या हो जाएगा वो 0, ठीक है कि नहीं। मान लो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो एक बड़े से ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रहा है, ठीक है, एक छोटी सी बॉल ले लीजिए आप, छोटी सी बॉल, और उसको एक दीवार पे मार दीजिए, ठीक है, अब वो उस बॉल का मास जो है बहुत कम है ना, लेकिन उस दीवार का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है कि नहीं, और दूसरी बात u2 रेस्ट पर है, मतलब वो दीवार रेस्ट पर है, ठीक है कि नहीं, है ना, होगा क्या, व्हाट विल हैपन, द बॉल विल बाउंस बैक, ओके, द बॉल विल बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, जैसा यहाँ पे कह रहा है कि v1 के पास, इस पहले वाले ऑब्जेक्ट के पास वही वेलोसिटी होगी जो यहां से जाते हुए थी, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, ठीक, मतलब इस तरह से ये जो v1 है ना ये वापस आ जाएगा लाइक दिस वे, ठीक है, और वो जो दूसरा वाला है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिर भी रेस्ट पर ही रहेगा, इज दैट क्लियर, है ना, ठीक। यार इस तरह से देखो, अगर आपकी एक दीवार है यहाँ पे इस तरह से एक बड़ी सी दीवार, तो इसका मास m2 है, इट इज एट रेस्ट, ठीक है, वॉल है ये, ठीक, अगर आप इसके ऊपर एक छोटी सी बॉल डाल दोगे लाइक दिस वे u1, तो व्हाट विल हैपन टू दिस बॉल, जब ये बॉल यहाँ पे कोलाइड करेगी तो इट विल बाउंस इट बैक विद द सेम वेलोसिटी u1, ठीक है ना, ठीक, विद द सेम वेलोसिटी u1, ओके, सो दिस टाइप ऑफ
special cases are possible in case of what? Elastic collisions. Is that clear? Okay.